Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I am your teacher Shazia Noreen and I am going to deliver your ninth lecture of English language and literature. We will start with English language workbook unit number 1, Friends Forever. Your revision lesson. Lesson number 1 is language focus, which is about present perfect tense. From your student book page number 18 and workbook page number 8. We actually use present perfect tense to talk about something that started and ended in the past. It is also used to indicate the completion of activities in the immediate past. मीन्स के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप किसी भी ऐसी एक्टिविटी या एक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ करते हैं जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और पास्ट में ही एंड हो जाए. ठीक है, कोई काम जो कंप्लीट हो चुका है, एक ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो डन हो गई. ठीक है, लाइक यू कैन सी द एग्जांपल्स हेयर. ही हैज़ जस्ट गॉन आउट. वो अभी अभी बाहर गया है, मीन्स के वो बाहर जा चुका है. ही हैज़ जस्ट रीच्ड देयर. वो अभी अभी वहाँ पहुँचा है, मीन्स के वो पहुँच चुका है. जिसने जहाँ जाना था वो जा चुका है, जिसने जहाँ पहुँचना था वो पहुँच चुका है. मीन्स के जो काम होना था वो फिनिश हो चुका है, डन हो चुका है. किसी भी काम की कंप्लीशन को एक्सप्लेन करने के लिए आप परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं. और अगर जब आप इसके साथ प्रेजेंट ऐड कर देते हैं तो मीन्स के वो काम अभी हुआ है. ठीक है, वो अभी कंप्लीट हुआ है. If we talk about the structure of present perfect tense, then present perfect tense contains helping verb has plus have plus third form of verb, which is also called past participle. If we talk about the structure of positive form of present perfect tense, then it contains subject plus helping verb has and have plus third form of verb. And again the helping verb either has and have is according to the subject. If the subject is he, she and it or any singular subject, then we use helping verb has. And if the subject is I, you, we and they or other plural pronouns, then you will use have as the helping verb. In case of negative sentences, you will only add not with has and have, like has not and have not, and rest of the sentence will remains the same. And in case of questions sentence, we interchange the position of subject and helping verb. Subject will come in the place of helping verb and helping verbs will go to the place of subject, and rest of the sentence remains the same. There you can see the detailed structure of present perfect tense, like if the subject is I, you, we, you and they, then you will use have plus third form of verb. And if the subject is he, she and it, then you will use has plus third form of verb plus past participle, like the third form of main verb. In case of negative sentences, you will use not with has and have. In case of question sentence, you can see here the sentence start with has and have. If the subject is I, you, we and they, then the sentence starts with have. And if the subject is he, she and it, then the sentences starts with has and rest of the sentence remains the same. That's all for present perfect tense. Students, then you have to do some practice and written work about the sentences, about tenses.
From your student book, page number 18 is for practice. You have to do exercise 1 and 3, which is related to present perfect tense. And then a written work, workbook, page number 8, exercise number 1, choose the correct answer. And exercise number 2, complete the sentences with present form of verb in the bracket. These both exercises are related to the tenses. You have to do these exercises on loose sheets. This is your written work. After this, unit number 4, healthy living, lesson number 2 and 3, language focus 1, quantity expression. Your student book, page number 50. Students, we use the expression of quantity to tell us how many or how much of something there is. Like, we get a little rain in spring and many people live in London. Little, we use little with rain, and with people we use many. These shows the quantity according to the words. मीन्स के किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए जो हम वर्ड्स या मेजरमेंट यूज़ करते हैं वो सेपरेट होती है. वो डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हो. लाइक आप रेन के साथ मैनी को नहीं यूज़ कर सकते, और इसी तरह आप पीपल को एक्सप्लेन करने के लिए भी लिटिल नहीं यूज़ कर सकते. तो ये हर वर्ड की डिमांड है कि उसके साथ कौन सा वर्ड जो है वो यूज़ किया जाए उसकी क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए. देन यू सी, we use a little with non-countable nouns like rain, snow and pollution. तो हम little कहाँ पर यूज़ करते हैं? non-countable nouns के साथ कि जिनको हम काउंट नहीं कर सकते. लाइक रेन आप उसे काउंट नहीं कर सकते हो, स्नो को आप काउंट नहीं कर सकते हो, अगेन पोल्यूशन आप इन चीज़ों को काउंट नहीं कर सकते. और काउंटेबल नाउन्स के साथ आप लिटिल को ऐड नहीं कर सकते. और इसी तरह अगेन मैनी जो है वो आप उन चीज़ों के साथ या उन वर्ड्स के साथ यूज़ करते हो जो काउंटेबल होती हैं, जिन्हें आप काउंट कर सकते हैं. आप इसी तरह से देखते हैं कि अगर हम फूड को एक्सप्लेन करेंगे, अ बाउल ऑफ सूप. अगर आप किसी ड्रिंकिंग थिंग को एक्सप्लेन करेंगे, अ कप ऑफ समथिंग, अ ग्लास ऑफ मिल्क, अ बॉटल ऑफ वाटर. इस तरह से अगर आप मेजरमेंट्स की बात करते हैं, एन और ऑफ, हाफ अ किलो ऑफ, मिलीलीटर्स ऑफ. ठीक है, इसी तरह से मीन्स हर चीज़ की मेजरमेंट और क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए जो वर्ड्स यूनिट्स हम यूज़ करते हैं वो वेरी करती हैं, डिफरेंट हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द वर्ड. स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू फ्रॉम स्टूडेंट बुक, you have to do exercise number 1, complete the table with uncountable nouns in the box on page number 50. पेज नंबर 50 पर एक एक्सरसाइज गिवन है, complete the table with uncountable nouns in the box. आपने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है. एट देन योर रिटन वर्क आपका वर्कबुक से जाएगा. एक्सरसाइज नंबर 1 and 2 ये आपका होमवर्क है. एक्सरसाइज नंबर 1 क्या है? डिस्क्राइब द फोटोज़ यूजिंग एक्सप्रेशंस ऑफ क्वांटिटी. आपने फ़ोटोज़ को एक्सप्लेन करना है अपने एक्सप्रेशंस ऑफ क्वांटिटी के लिहाज से. एंड देन एक्सरसाइज नंबर 2, राइट 3 आइटम्स दैट कैन बी यूज्ड विद ईच एक्सप्रेशन. आपने 3 आइटम्स को एक्सप्लेन करना है जो कि हर एक्सप्रेशन को शो करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं. ये आपका काम जो है वो रिटन वर्क है जो वर्कबुक से. देन लेसन नंबर 4, वोकैबुलरी 1, एनिमल्स इन द वाइल्ड ऑन पेज नंबर 58 and 59. स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 4 आपका वोकैबुलरी 1 है. ठीक है, पेज नंबर 58 और पेज नंबर 59 पर मौजूद है स्टूडेंट बुक से. एक्सरसाइज नंबर 1, मैच द डिस्क्रिप्शन टू द फोटोज़. आपने एक्सरसाइज नंबर 1 में क्या करना है?
जो डिस्क्रिप्शंस गिवन हैं उनको फ़ोटोज़ के साथ मैच करना है कि कौन सी डिस्क्रिप्शन किस फ़ोटो के अकॉर्डिंग है। एक्सरसाइज नंबर 2, यूज़ द डिक्शनरी टू फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। ये जो वर्ड्स गिवन है बोल्ड में, आपने इनके मीनिंग्स डिक्शनरी से सर्च आउट करने हैं एंड यू हैव टू राइट देम। एंटेना, एब्डोमेन, फैंग्स, फर एंड ऑल दीज वर्ड्स, ठीक है, एंड मैच द डेफिनेशंस टू द वर्ड्स, और डेफिनेशंस के साथ फिर इन वर्ड्स को आपने मैच करना है, ठीक है। आपका रिटन वर्क कोई प्रॉपर वे में नहीं है जो आप लूज शीट्स पर करेंगे, ये जस्ट आपके बुक पर करने वाले काम हैं। एंड स्टूडेंट्स, यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड दैट इन ऑनलाइन सपोर्ट प्रोग्राम राउंड 2 you have to do your written work on loose sheets। आप अब कोई काम अपनी नीट कॉपीज़ पर नहीं करेंगे, आपका तमाम काम लूज शीट्स पर जाएगा, और वो जो मैं आपको रिटन वर्क की हेडिंग के अंडर मेंशन करूँगी, ठीक है। बाकी आपका ऑलमोस्ट सारी प्रैक्टिस है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर दिस वीक। अल्लाह।